Hello students, this is second lecture on chapter 13 AC circuits. In last lecture we discussed about how to find out average value of AC EMF and AC current for half cycle. Okay, और वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ AC EMF रहेगा या AC करंट रहेगा वो रहता है फॉर हाफ साइकिल आई एम टॉकिंग, वो रहता है 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC EMF या पीक वैल्यू ऑफ AC करंट. Now today's lecture, let us find out the root mean square value of AC EMF and AC current. अभी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता क्या है? आप इसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हो, आप इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हो. ये रहता क्या है देखो. लेट अस टेक अ रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर. Take a resistor whose resistance is capital R. Through this resistor pass the AC current for time t. Through that resistor pass the current AC current for time t. So in time t, passage of electric current increases the temperature of that resistor. Let temperature increases from theta 1 to theta 2. तो हम लोगों ने क्या किया, एक रेजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस है R. Through that resistance current is passed for time t. So because of heating effect, conductor temperature increases from theta 1 to theta 2. So that current gives you a heating effect. Okay. Now allow that conductor to regain its original temperature. उसको अपना temperature वापस regain करने दो. Again take that conductor whose resistance is R. Now across that conductor R, let us pass the DC current through that conductor. Pass the DC current through that conductor for the time t, the time allotted for AC current. If this DC current for time t for same resistance increases the temperature from theta 1 to theta 2, यानी gives heating effect for same resistor for same interval of time, then this steady value of current is called as RMS value of AC current. Okay, तो यही डेफिनेशन यहाँ पे दिया है. मैं भी यहाँ से पढ़ता हूँ. देखो आपको क्या करना है, पहला AC करंट पास करना है रेजिस्टर में से फॉर टाइम t. तो हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा थीटा 1 टू थीटा 2, तो हीटिंग इफेक्ट मिल गया. फिर सेम रजिस्टर में से आप डीसी करंट पास करो, सेम रजिस्टर है, सेम टाइम अलॉट करो, सेम टेम्परेचर राइज होने दो. सो फॉर दैट टू हैपन, जितना डीसी करंट आपने पास किया उसी डीसी करंट को एसी करंट का आरएमएस वैल्यू बोला जाता है. सी लेट मी रीड फ्रॉम हियर. The RMS value of alternating current is defined as that steady current which when flowing through the given resistance for a given time produces the same amount of heat as produced by AC current when flowing through the same resistor for same time. Okay, let us find out this expression. What is current at any instant is I0 sin omega t, where I is the value of current which is at any instant t. इसका आप instantaneous value बोल सकते हैं. This is the maximum value of that current, जिसको हम लोग बोलते हैं amplitude current या peak current. ठीक है. तो let current is passed through the conductor or through the resistor for time dt. So passage of current through the resistor for time dt produces the heat energy. So that heat energy is let dH. According to Joule's law of heating effect, उन लॉ आपको पता है, H is equal to I square RT होता है. H is equal to I square RT जो आपने 10th या 9th में पढ़ा हुआ है. तो DH is equal to, मैंने चेंज ले इसलिए D ले रहा हूँ, DH is equal to I square R dt. Substitute the value of I0 sin omega t square R dt. So dH is equal to I0 square sin square omega t R into dt.
ये था heat developed due to the passage of current through the resistor for time dt. Let us take the complete time for a complete cycle and find out the total heat developed. तो टोटल हीट डेवलप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डीएच. यहाँ आई जीरो स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट है, ये मैंने बाहर लिया. इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, वेर टाइम वेरीज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल, ये बाहर ले लिया. अभी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तो मैं ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ. इसका जो वैल्यू होता है ना, एक्चुअली आप डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये वैल्यू होता है कैपिटल टी बाई टू. सो यू डायरेक्टली कैन यूज. ओके, ये बार बार रिपीट होने वाला है आगे कंटेंट में, तो मैं एक स्टेप में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे. साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज रिप्लेस बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2. हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज किया है. फिर अभी ये ब्रैकेट में देखो, दो टर्म्स हो गए. 1/2 एक टर्म है एंड कॉस ऑफ 2 ओमेगा 2/2 ये दूसरा टर्म. सो लेट मी सेपरेट दैट. तो देखो मैंने दो सेपरेट कर लिया. ये 1/2 है, मैंने 2 कॉमन ही ले लिया, तो ये इंटीग्रेशन डी टी आ गया, और ये इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी डी टी आ गया. ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये जो है ये हो जाएगा टाइम पीरियड, क्योंकि अपर लिमिट टी है, लोअर लिमिट 0 है, तो ये टी हो जाएगा. और ये हार्मोनिक रेशो है. हार्मोनिक रेशो ओवर द कंप्लीट साइकिल सेम वैल्यू रीगेन होता है. तो इसका इंटीग्रेशन का फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, क्योंकि cos 0 और cos t सेम हो जाता है, ये 0 हो गया. तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर? आई जीरो स्क्वायर आर टी अपॉन 2, ये बचेगा. ये देखो, दिस इज द हीट डेवलप इन अ टाइम पीरियड. आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 आर टी. राइट. ओके, मानो आरएमएस वैल्यू, हम लोग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आरएमएस वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू क्या रहेगा? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर टी. ये अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसको हम लोग आर एम एस वैल्यू बोलते हैं ना. ओके, तो ये दोनों इक्वेट कर लो. अभी जब आप दोनों इक्वेट करोगे तो आई स्क्वायर आर एम एस का रिप्लेसमेंट आएगा आई जीरो स्क्वायर बाई 2. ये वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट आई जीरो बाई रूट 2. ये जो रूट 2 है ये हो गया 1.414. इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये आएगा 0.707 I0. यानी व्हाट इज आर एम एस वैल्यू इज ऑलवेज 70.7% ऑफ पीक वैल्यू. राइट. सेम फॉर्मेट में हम लोग आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी ई एम एफ भी सॉल्व कर सकते. सेम फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ई एम एफ फॉर हाफ साइकिल बोला था, वैसे ही या तो यही एक्सप्रेशन कंटिन्यू करो यहाँ तक, फिर यहाँ आई आर एम एस को बोलो ई आर एम एस इंटू रेजिस्टेंस, और आई जीरो को बोलो ई जीरो इंटू आर. दोनों साइड का कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा इक्वेशन ई आर एम एस इज इक्वल टू 70.7% ऑफ ई जीरो. ऐसे मिलेगा. यही एक्सप्रेशन को आप दो स्टेप आगे कंटिन्यू करो, तो यू विल गेट रिलेशन बिटवीन आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी ई एम एफ एंड आर एम पीक वैल्यू ऑफ ए सी ई एम एफ. कुछ नहीं, ये आर को ओम्स लॉ यूज करके लिखना है. ई आर एम एस इंटू कैपिटल आर, और ये ई जीरो इंटू कैपिटल आर, और आर कैंसिल करो. सेम एक्सप्रेशन आ गया. ये देखो आ गया, सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा. ये देखो, खाली अब हम लोगों ने आई जीरो स्क्वायर कैरी किया था, अभी यहाँ आई जीरो स्क्वायर कैरी किया था, अभी ई जीरो स्क्वायर कैरी करें, ई जीरो अपॉन आर कैरी करें, वहाँ आर नहीं था. सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा स्पीडली समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी एम एफ किसको बोलोगे? टेक अ कंडक्टर whose resistance is R. Across that conductor, connect the source of AC EMF so that current delivered by that source of AC EMF passes through it. So let that AC EMF is kept applied and it allows the passage of electric current for time t.
in time t, temperature of that resistor increases from theta 1 to theta 2 and gives you some heating effect. Now allow that resistor to regain its original temperature and original resistance. Now across it, connect the source of DC EMF. यानी आपका regular battery, primary cell. Now adjust the value of DC EMF या DC voltage such that for same resistor, for same interval of time, passage of current increases its temperature from theta 1 to theta 2. Yani it gives you a same heating effect. Then this adjusted value of DC EMF is called as RMS value of AC EMF. और वो कितना रहेगा 70.7% ऑफ पीक वैल्यू. देखो वही मेथड है, मैंने आपको यही एक्सप्रेशन कंटिन्यू करने को बोला था, 2 स्टेप आगे जाओ ओम्स लॉ यूज करके, या तो फिर अलग से शुरू से सॉल्व करो. ये देखो ये EMF है. Let EMF is kept applied for time dt across the resistor R. It gives you sample heating effect. DH is equal to वो होता है V स्क्वायर अपॉन R. I स्क्वायर RT भी होता है और V स्क्वायर अपॉन R भी होता है. V स्क्वायर T अपॉन R भी होता है. ये सब्स्टिट्यूट करो. This is what kept here. ये क्या रहेगा? E0 नहीं, यहाँ थोड़ा मैंने गलती किया है. 1 मिनट, कॉपी पेस्ट किया. ओके, E0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया. अभी E0 स्क्वायर अपॉन R ये तो कांस्टेंट है और ये सैंपल हीट डेवलप इन टाइम dt है. सो व्हाट इज द टोटल हीट डेवलप इन टाइम पीरियड? तो सैंपल का इंटीग्रेशन ले लो 0 to t. ये कांस्टेंट आ गया. ये देखो हम लोग वहाँ पे कांस्टेंट आया था I0 स्क्वायर, तो I0 स्क्वायर भी रिप्लेस हो गया E0 स्क्वायर बाय R. इतना ही. ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो. मैंने आपको ऑलरेडी बोला ये इंटीग्रेशन कितना रहता है, ये रहता है कैपिटल T बाय 2. हम लोगों ने लास्ट एक्सप्रेशन में डिस्कस किया. ये देखो सेम है, सेम है, वही स्टेप. तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ डायरेक्टली T/2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्योंकि 2 में स्प्लिट हो जाएगा. पहले का T है, ओके, और इसका 0 आ जाएगा. ये देखो आगे वापस E0 स्क्वायर 2R अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया. बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ ERMS ये इफेक्टिव वैल्यू है, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, E स्क्वायर RMS अपॉन R इंटू T. कंपेयर करो, यू विल गेट दिस वैल्यू, सेम आएगा. जस्ट रीड इट. ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ लो. डिफाइन फॉर्म फैक्टर, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इसी के साथ लिंक है तो मैं खाली ऐड करके रखा. फॉर्म फैक्टर इज व्हाट? RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल का रेशो. RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल का रेशो. RMS वैल्यू होता है पीक वैल्यू अपॉन √2 और एवरेज वैल्यू होता है 2 टाइम्स पीक वैल्यू अपॉन पाई. ये डिवाइड कर लो, I0 कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन √2. दिस इज द फॉर्म फैक्टर. Clear? Okay. Now next time we'll continue with the same topic again. Thank you.